Institute Coaching Classes, Bhopal. This is Devang Patel, a certified young professional and director of Institute Coaching Classes. Welcomes you all in today's session. Today we will be discussing about a very important subject that is really gaining much significance in the society, that is psychology. Okay, in this particular video we will be studying about the basics of psychology because it's really very important for every person irrespective of their subjects, whether they belong to psychology or not. But it is really very important for each individual to know the basics of psychology. It is also termed as life science because it teaches us how to be happy and how to lead a better life. So in the introduction part, the introduction of psychology, today we will be discussing about some major introductory topics that are initially, the first one will be what is psychology. What is psychology, which will include about the definition, its meaning with the examples of psychology and its uses in the present day world. After that we will be discussing about the origin of psychology, which will include its evolution and history. And the third topic will be the goals of psychology. Goals of psychology because each subject has its different and unique way of learning and understanding. Similarly, for our subject psychology, we have a set of steps which we must follow to get a better understanding of our subject. We will be able to understand it better if we are following these steps. And then lastly, we will be studying about the approaches of psychology, early approaches, which led to the development of our modern day psychology, which we are studying today, which will include structuralism, functionalism, gestalt psychology, psychoanalysis, behaviorism and humanistic psychology. Okay, let's start with the introduction part. तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे साइकोलॉजी की डेफिनेशन की। अगर हम साइकोलॉजी की डेफिनेशन की बात करें तो साइकोलॉजी इज डिफाइंड एज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ आवर माइंड, बिहेवियर एंड कॉग्निटिव प्रोसेसेस. It seeks to understand how a person feels, how a person thinks and how a person acts regarding any stimulus or anything. इस पूरी डेफिनेशन में आपको एक नया वर्ड समझ में आया होगा, सुनाई दिया होगा, दैट इज कॉग्निटिव प्रोसेसेस. अगर हम कॉग्निटिव प्रोसेसेस की बात करें तो देयर इज नथिंग न्यू इन दैट. जो हम मेंटल प्रोसेसेस की बात करते हैं, मेंटल प्रोसेसेस, पर यहाँ पर क्या है, बिकॉज द साइकोलॉजी हैज मॉडर्नाइज्ड दीस डेज, तो हम मेंटल वर्ड को यूज ना करके उसके बदले हम कॉग्निटिव वर्ड यूज करते हैं. इट इज मोर फॉर्मलाइज्ड वर्ड, so we use mental instead of mental we use the cognitive word. So here all the processes, all the mental processes which we are calling as cognitive processes now. So all these cognitive processes, for example our thinking, our memory etc., ये सभी जो है cognitive processes में आती हैं. तो simply अगर हम देखें तो हमारा mind में जो कुछ भी फंक्शन हो रहा है, जो कुछ भी स्ट्रक्चर बना हुआ है, all the things which are going on in our mind is covered in the field of psychology. अगर हम हमारे सब्जेक्ट के ओरिजिन की बात करें, साइकोलॉजी का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, तो हमारे सब्जेक्ट का ओरिजिन पहले के दो सब्जेक्ट से मिलकर बना है. दैट साइकोलॉजी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू अर्ली सब्जेक्ट्स, दैट इज फिलॉसफी एंड फिजियोलॉजी. अब इन दोनों के बारे में समझते हैं कि दोनों से कैसे डेवलप हुआ है. आपको पता है कि हमारी साइकोलॉजी में कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम फिलॉसफी से समझते हैं, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम फिलॉसफिकल यूज़ उनका लेते हैं. तो मेडिवल टाइम पे क्या होता था कि मेडिवल टाइम पे इन्हीं चीज़ों का डिस्कशन बहुत ज़्यादा बीच में चल गया कि भाई क्या हमारे माइंड और हमारी बॉडी या फिर जो हमारी बॉडी में एक्शंस हैं, क्या इनके बीच में कोई एसोसिएशन है या फिर कोई रिलेशन है. तो इसी रिलेशन को फाइंड आउट करने की जो क्यूरियोसिटी थी, उसी क्यूरियोसिटी ने एक नए सब्जेक्ट को बर्थ दिया, नए सब्जेक्ट को जन्म दिया जिसे हम साइकोलॉजी के नाम से जानते हैं. और धीरे धीरे करके उसी पर्टिकुलर आइडिया में, उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए जो कि हम मॉडर्न साइकोलॉजी में आज देख पाते हैं. अगर हम बात करते हैं, इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारी साइकोलॉजी की 4 स्टेप्स होती हैं उसको सही से समझने के लिए, सही से पढ़ने के लिए. इन 4 स्टेप्स को अगर हम फॉलो करें तो हम हमारे सब्जेक्ट की एक काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग जनरेट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं. तो अगर हम इसमें पहली स्टेप के बारे में बात करें, द फर्स्ट स्टेप टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी और द गोल ऑफ साइकोलॉजी इज टू डिस्क्राइब. Then the second one is to explain, third one is to predict and fourth one is to control and modify. अब हम इनकी बात में डिटेल में देखेंगे कि ये आखिर क्या होते हैं. तो सबसे पहले अगर हम डिस्क्राइब की बात करें तो फॉर एग्जांपल किसी भी बात को समझना कि क्या प्रॉब्लम हो रही है या फिर क्या बिहेवियर अकर हो रहा है, तो उस चीज़ को पॉइंट आउट करना, ये समझना कि क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, दैट पर्टिकुलर पार्ट इज नोन एज डिस्क्रिप्शन या फिर डिस्क्राइब, टू डिस्क्राइब.
सेकेंड वन जो हमारा आता है दैट इज टू एक्सप्लेन। अब जो भी प्रॉब्लम हो रही है तो उस प्रॉब्लम का कॉज क्या है या फिर रीजन क्या है जिस कारण से वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम या पर्टिकुलर इंसिडेंट या सिचुएशन जो है वो अकर हो रही है। तो दूसरे स्टेप में हमने समझा कि जो कुछ भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। अब तो हमारा थर्ड वाला जो पार्ट होता है, थर्ड सिग्निफिकेंट स्टेप इज टू प्रेडिक्ट। प्रेडिक्ट व्हाट? प्रेडिक्ट द बिहेवियर, कि वो पर्टिकुलर बिहेवियर कब कब अकर हो सकता है, कब कब वो हमें फिर से देखने को मिल सकता है। तो जो भी सिचुएशन हमने, जो भी प्रॉब्लम हमने नोटिस की कि भाई ये प्रॉब्लम हो रही है, दूसरे स्टेप में हमने देखा कि वो प्रॉब्लम जो है वो क्यों हो रही है, क्या रीजन है, और तीसरे स्टेप में हमने अज्यूम किया, हमने प्रेडिक्ट किया कि जो कुछ भी प्रॉब्लम यहाँ पर हो रही है वो कब कब फिर से हो सकती है या फिर से वो चीज़ रिपीट हो सकती है। व्हाट कुड बी द सिचुएशंस वेयर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम कुड बी रिअकर्ड। ठीक है, और इसके बाद हमारा फोर्थ स्टेप आता है टू मॉडिफाई और टू कंट्रोल। अब दोनों में डिफरेंस ये है, कंट्रोल मतलब जो भी बिहेवियर हो रहा है, जनरली अगर हम बात करें तो हम नेगेटिव बिहेवियर्स की ही बात कर रहे हैं। तो ये जो भी नेगेटिव बिहेवियर्स यहाँ पर हो रहे हैं, उन बिहेवियर्स का इन्फ्लुएंस जो है हमारी लाइफ पे, हमारी डेली लाइफ बॉडी पे और ज़्यादा ना पड़ पाए, उस चीज़ को कंट्रोल में रखा जाए, उस चीज़ को लिमिट करने के लिए हम इस स्टेप का यूज़ करते हैं। और दूसरा, जो नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस हमारे ऊपर देखने को मिल रहे हैं, उन नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस को पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ाया जाए, उन्हें पॉजिटिव की तरफ लेकर जाया जाए, ना कि सिर्फ कंट्रोल करना, उन्हें सुधारा भी जाए। ये जो है हमारा फोर्थ स्टेप में आता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम इन्हीं पर्टिकुलर एक इससे फोर्थ स्टेप्स का एग्जांपल लें तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है, आपको पता है अभी नवंबर चल रहा है और अभी कुछ ही दिनों में सभी के एग्जाम्स आने वाले हैं। अब इस टाइम पे एग्जाम्स के टाइम पे क्या होता है, बच्चों को बहुत ज़्यादा टेंशन होता है। जनरली ये देखा जाता है कि बच्चे सही से खाना नहीं खाते हैं या फिर कई बच्चों को नींद नहीं लगती है, जब बहुत ज़्यादा टेंशन, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जब हमने नोटिस किया कि उनमें स्ट्रेस बढ़ रहा है तो हमने नोटिस किया स्ट्रेस। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेस है या फिर स्लीपलेसनेस है, ये जो पर्टिकुलर सिचुएशंस हैं, ये हमारे डिस्क्रिप्शन वाले पार्ट के थ्रू हम कर पाए, हमने ऑब्जर्व किया उस चीज़ को। दूसरा, अगर हम बात करें, हम कोशिश करते हैं इसका रीज़न निकालने की कि ये जो बच्चों में स्ट्रेस हो रहा है या फिर जो कुछ भी सिचुएशन यहाँ पर बन रही है वो क्यों बन रही है, व्हाट कुड बी द रीज़न बिहाइंड दैट। तो उसका रीज़न ये हो सकता है कि बच्चे को भाई एग्जाम आ रहा है, उसने सही से पढ़ाई नहीं की है या बहुत कम टाइम बचा है, तो दिस कुड बी द रीज़न जिसके कारण बच्चे को ये प्रॉब्लम हो रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें, द थर्ड वन इज टू प्रेडिक्ट। तो अब हम यहाँ पर प्रेडिक्ट या अज्यूम कर सकते हैं कि ये जो प्रॉब्लम पर्टिकुलर सिचुएशन बन रही है ये कब कब और बन सकती है। हो सकता है कि बच्चे ने जैसे ही बुक खोल के देखी हो और उसको हर पन्ना ऐसा लग रहा है कि भाई ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। अब उसको जब भी बुक खोल के देखेगा और उसे लगेगा ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, इट मीन्स कि जो प्रॉब्लम, जो सिचुएशन उसको अगर हो रही थी, जो उसको हमें ऑब्जर्व हमने किया, वो चीज़ फिर से यहाँ पर अगर हो सकती है। तो दिस इज अ प्रेडिक्शन कि वो कब कब वो चीज़ अगर हो सकती है। जैसे बहुत एक सिंपल से एग्जाम्पल है, जैसे कोई बच्चा गार्डन में खेल रहा है, अब वो किसी को पत्थर उठा के मारे, तो अगर उसके पेरेंट्स को तो पता होगा ना कि भाई बच्चा इरिटेट होता है जब मारता है या फिर कोई उसको परेशान करता है जब मारता है, तो पेरेंट्स नोज कि भाई बच्चे में ये बिहेवियर कब कब देखा जा सकता है। तो दिस इज व्हाट प्रेडिक्शन इज। और इसके बाद हम बात करते हैं कंट्रोल या फिर मॉडिफाई की। तो इसमें हम क्या करेंगे कि बच्चे को अगर एग्जाम के कारण स्ट्रेस हो रहा है तो हम उसे कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स बताएंगे, हम उसे कुछ रिलैक्सेशन मेथड्स बताएंगे जिससे वो अपने माइंड को रिलैक्स कर सके। फॉर एग्जांपल, हम उसको एक प्रॉपर शेड्यूल बना के दें, हम उसकी हेल्प करें कि किस तरह से आप अपने वर्क को डिवाइड करो और अपने वर्क को शेड्यूल के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो वो बन जाएगा। इस तरह से हम उसको सपोर्ट करें, या फिर हम उन्हें बताएं आप मेडिटेट करो, आप सुबह जल्दी उठ के पढ़ो। तो जो हमारी टिप्स हम देंगे वो चीज़ यहाँ पर मॉडिफाई में आएगी या कंट्रोल में आएगी, जो कि उसका नेगेटिव बिहेवियर जैसे स्लीपलेसनेस या फिर पढ़ाई में मन ना लगना या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना, इन सभी नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस को कम करेगा और एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस की तरफ लेकर जाएगा। तो दिस इज व्हाट, दीज आर द स्टेप्स विच एक्सप्लेन्स अस कि साइकोलॉजी को किस तरह से समझा जा सकता है। अगर आप इन 4 स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो यू विल गेट अ रियली वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर सब्जेक्ट। आप इस हमारे सब्जेक्ट को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो इन चारों की अगर हम बात करें, थोड़ा सा और इस पर डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारा पहला पॉइंट होता है, पहला स्टेप होता है डिस्क्राइब। इट गिव्स अस द आंसर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग। सेकेंड वाला जो है दैट इज एक्सप्लेन, इट गिव्स अस द आंसर ऑफ व्हाई एनीथिंग और व्हाई दैट पर्टिकुलर थिंग इज हैपनिंग। तीसरी हमारी स्टेप होती है प्रेडिक्ट।
प्रेडिक्ट मीन्स व्हेन इट विल अकर अगेन और इट माइट अकर अगेन, तो उसमें जो है वो चीज़ फिर से कब देखी जा सकती है। एंड फोर्थ वन इज हाउ, इट गिव्स अस द आंसर ऑफ हाउ कैन वी कंट्रोल इट, हाउ कैन वी मिनिमाइज इट और हाउ कैन वी मॉडिफाई दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। ओके, आगे बढ़ते हैं तो हमारे फोर्थ पार्ट की तरफ। हमारे फोर्थ पार्ट में हम देखेंगे कि कौन कौन सी अप्रोचेस हमारी साइकोलॉजी को लेके डेवलप हुई हैं। अप्रोचेस का मतलब ये है कि हम इसमें समझें कि हमारी साइकोलॉजी को लेके अर्ली पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग लोगों के किस तरह से रहे हैं, लोगों ने किस चीज़ पे एम्फेसाइज किया है कि हम क्या पढ़ें हमारे सब्जेक्ट को समझने के लिए, या फिर साइकोलॉजी में क्या चीज़ इंक्लूड होनी चाहिए। इस चीज़ को लेके काफ़ी सारे डिस्कशंस रहे हैं, काफ़ी सारे अलग अलग लोगों के अलग अलग आइडियाज़ रहे हैं। उसी में सबसे पहले हम देखेंगे, हम स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चरलिज्म जहाँ पर, क्योंकि हमें वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि स्ट्रक्चरलिज्म कहीं ना कहीं कुछ किसी चीज़ के स्ट्रक्चर की बात करता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, एडवर्ड टिचनर और विलियम वुड ने इस चीज़ को डेवलप किया था। इनके अकॉर्डिंग, विलियम वुड को आप नहीं जानते हो तो विलियम वुड इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ साइकोलॉजी। तो स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में अगर हम देखें तो ये फोकस करता है, इनके अकॉर्डिंग इनका आर्ग्यूमेंट ये था कि हमारी जो साइकोलॉजी सब्जेक्ट है, इट शुड फोकस ऑन स्टडिंग अबाउट द स्ट्रक्चर्स ऑफ आवर माइंड। हम जो कुछ भी करते हैं उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम हमारे माइंड की स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ें। तो हमारे माइंड के स्ट्रक्चर को समझने के लिए इन लोगों ने एम्फेसिस अपने स्टडी पे दिया। इसके बाद जो हमारी अप्रोच आती है दैट इज फंक्शनलिज्म। अब क्या हुआ कि स्ट्रक्चरलिज्म जो है उसको काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली, और कुछ समय बाद लेकिन हम देखते हैं कि स्ट्रक्चरलिज्म धीरे धीरे जो है उसको जो स्कोप है उसका स्ट्रक्चरलिज्म का कम होते गया। अब उससे एक नई चीज़ डेवलप होकर आई जो कि फंक्शनलिज्म के नाम से जानी जाती है। फंक्शनलिज्म जो कि हमारे विलियम जेम्स और जॉन ड्यू ने दिया था। विलियम जेम्स और जॉन ड्यू ने हमारा फंक्शनलिज्म दिया था। इसमें क्या है कि फंक्शनलिज्म में उन लोगों ने बोला कि हमें हमारे माइंड के फंक्शन के बारे में स्टडी करना चाहिए। अगर हमें साइकोलॉजी को पढ़ना है तो साइकोलॉजी शुड फोकस अपॉन द फंक्शंस ऑफ आवर माइंड, हाउ आवर माइंड फंक्शंस। तो हमें उस चीज़ पे फोकस करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द फंक्शनलिज्म अप्रोच। हमारे थर्ड अप्रोच के बारे में बात करते हैं, दैट इज नोन एज गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी की अगर हम बात करें तो इट वाज गिवन बाय मैक्स वर्डमर एंड कोलर। इन लोगों ने इस चीज़ को डेवलप किया था गेस्टाल्ट साइकोलॉजी को। अकॉर्डिंग टू देम वी शुड और साइकोलॉजी शुड फोकस अपॉन परसेप्शन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। नाउ व्हाट इज परसेप्शन? हम किसी भी चीज़ को कैसे इंटरप्रेट करते हैं, कुछ भी हम कोई भी चीज़ हमने देखी, कोई भी इंफॉर्मेशन हमें दिख रहा है, हम उस चीज़ को कैसे समझ रहे हैं। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग किसी भी चीज़ को लेकर क्या है, दैट इज अ परसेप्शन। तो इनका मानना था कि हमें हमारे परसेप्शन पर ध्यान देना चाहिए, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग पर ध्यान देना चाहिए कि हम किसी भी चीज़ को देखकर क्या समझते हैं और उससे क्या हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हम किस तरह से उसमें लगाते हैं। हमारी फोर्थ अप्रोच के बारे में बात करते हैं, दैट इज टर्म्ड एज साइको एनालिसिस व्हिच वाज गिवन बाय सिगमंड फ्रॉइड की अगर हम बात करें तो इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइकोलॉजिस्ट who has given his most contribution for the development of our subject। तो इनके बारे में हम बात करें, साइको एनालिसिस जो कि हमारी फोर्थ अप्रोच है साइकोलॉजी को लेकर, इनका मानना था कि हमें हमारी अनकॉन्शियस ड्राइव्स, हमारे डिजायर्स और जो हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हैं उनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हमें साइकोलॉजी को समझना है। तो इनका मानना था कि हमारे बिहेवियर को यही चीज़ें जो है वो शेप करती हैं। हम किस तरह से किस चीज़ को लेकर बिहेव करेंगे, इट विल बी डिपेंडेंट अपॉन आवर अनकॉन्शियस डिज़ायर्स, हमारे डिज़ायर्स, हमारी वॉन्ट्स, हमारे डिज़ायर्स, ड्राइव्स और हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस के ऊपर हमारी सारी चीज़ें जो है बेस्ड रहती हैं कि हम किस तरह से किसी भी चीज़ को लेकर बिहेव करेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें हमारा फिफ्थ अप्रोच बिहेवियरिज्म व्हिच वाज गिवन बाय जी.वी. वर्सन, इवन पेवलोव एंड बी.एफ. स्किनर। अगर इन लोगों की बात करें तो आपने शायद सुना होगा ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, जो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स इन लोगों ने किए। किसी ने अपने चिंपैंजी के साथ किया, किसी ने जो है डॉग के साथ किया, किसी ने कैट और रेट्स के साथ किया। तो इन्होंने इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए। अब इनका मानना था, इन लोगों ने एक नई थ्योरी डेवलप की जिसे हम SR थ्योरी के नाम से जानते हैं, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। इन लोगों का मानना था कि जो हमारे
किसी भी स्टिमुलस को देखकर जो जिस तरह से हम रिस्पॉन्ड करते हैं वो हमारा बिहेवियर कहलाता है। ठीक है, इसका मतलब इनके मानना ये था कि जो हमारा ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है, मतलब जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, उससे हमारा पर्सनैलिटी जो है शेप होती है। तो अगर हम इनके बारे में बात करें, इनने साइकोलॉजी का कंट्रीब्यूशन ये दिया कि इन्होंने बिहेवियर पे ज़्यादा फोकस किया कि हमारा बिहेवियर ही हमें शेप करता है और हमारा बिहेवियर किस तरह से बनता है, किसी न किसी स्टिमुलस को हम किस तरह से उस चीज़ को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, वही रिस्पॉन्स जो है वो हमारा बिहेवियर कहलाता है। इसके बाद हम बात करते हैं ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी की या फिर ह्यूमनिस्टिक अप्रोच की। अकॉर्डिंग टू सबसे पहले तो हम देख लेते हैं ह्यूमनिस्टिक अप्रोच जो है कार्ल रॉजर्स और इब्राहिम मैस्लो ने दिया था। कार्ल रॉजर्स एंड इब्राहिम मैस्लो, व्हाट दे टॉक अबाउट इज दे टॉक्ड अबाउट द इंडिविजुअल पोटेंशियल की पर किसी भी पर्सन में का इंडिविजुअल पोटेंशियल क्या है। इन्होंने सेल्फ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्टडी किया। इनका जितना भी रिसर्च था, इनके जो जितने भी डिस्कशंस थे, ये सभी सेल्फ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस करते थे। तो दे फोकस्ड अपॉन सेल्फ, सेल्फ कंसेप्ट, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं जिनको हम आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे। सो फॉर टुडे, because I was giving the brief introduction, I was giving the basics of psychology, तो इसमें हम बाकी के बहुत सारे नए टर्म्स आए हैं, बहुत सारी अप्रोचेस हमने देखी, इन सभी के बारे में हम बहुत डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, जैसे बिहेवियरिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, इन सभी का डिटेल में हमको आगे दिया हुआ है। इफ़ यू रियली वांट कि आपको साइकोलॉजी अच्छे से समझ में आए एंड यू शुड गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, भले ही आप साइकोलॉजी से बिलोंग करते हो या फिर ना करते हो, एवरी पर्सन शुड हैव द बेसिक नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको साइकोलॉजी का पूरा बेसिक नॉलेज हो, वो भी एक स्टेप वाइज, बिकॉज हर चीज़ का एक सिस्टमेटिक होना ज़रूरी है। आप बहुत सारी वीडियोस देख सकते हैं, अलग अलग टीचर्स को आप देख सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि अगर आप एक पूरा स्टेप में नहीं चलते, एक सिस्टम से नहीं चलते हैं, तो यू वॉन्ट बी एबल टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप हमारे साथ बने रहें और एक स्टेप में, एक सीक्वेंस में हम इस सारी चीज़ों को पढ़ेंगे ताकि हम अच्छे से हर चीज़ को समझ सकें।